Hello students, today we will discuss about political science chapter 2 named diversity, prejudice and discrimination on page number 212. We read about the amazing diversity in India in the previous chapter. We also saw that each one of us is unique, having certain qualities that make us different from others. These differences are because of diversity. Although diversity enriches the culture of a country, yet sometimes we form specific attitudes and opinion that cause disharmony in society. Here we shall discuss these discriminatory attitudes in some detail. हमने पिछले अध्याय में भारत में अद्भुत विविधता के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, जिससे कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। ये अंतर विविधता के कारण है। यद्यपि विविधता किसी देश की संस्कृति को समृद्ध करती है, फिर भी कभी कभी हम विशिष्ट दृष्टिकोण और राय बनाते हैं जो समाज से घृणा का कारण है। यहाँ हम इन भेदभाव पूर्ण व्यवहारों पर कुछ विस्तार से डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइज, भेदभाव और पूर्वाग्रह। Historical and zoographical factors given rise to diversity, but diversity is not always celebrated or appreciated. It is quite often that we see people being discriminated against on the basis of their skin color, race, caste, language, religion और gender. इसमें बताया गया है ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता को जन्म देते हैं, लेकिन विविधता को हमेशा मनाया या सराहा नहीं जाता है। यह अक्सर होता है कि हम लोगों को उनकी त्वचा के रंग, नस्ल, जाति, भाषा, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करते हुए देखते हैं हम। The practice of making such distinctions and treating a person or group of person less favorably than other is called discrimination. इसमें आगे बताया गया है इस तरह के भेद बनाने और किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को दूसरे की तुलना में कमतर आंकने की प्रथा को क्या कहा जाता है? भेदभाव कहा जाता है। Discrimination is born out of prejudice and due to certain of stereotypes among people and the way in which they think and perceive other. ये जो भेदभाव है पूर्वाग्रहों से पैदा हुआ है और लोगों के बीच रूढ़ियों के निर्माण के कारण और जिस तरह से वे सोचते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। नेक्स्ट है prejudice, preconception and flawed precipitation. Prejudice is an illogical, irrational and unreasonable opinion about a person or group of people which is formed without any basis or knowledge. This opinion is formed on false beliefs and preconception that exist in people's mind. जो prejudice है वह एक व्यक्ति या लोगों के समूह के बारे में एक अतार्किक, तर्कहीन और अनुचित राय है जो बिना किसी आधार, विचार या ज्ञान के बनता है। ये राय झूठी मान्यताओं लोगों के दिमाग में मौजूद पूर्व धारणाओं पर बनी है। ओके, इट resides our thinking and cause disharmony in society. When people are prejudiced, they do not give others the respect that all humans deserve and are entitled to. ये हमारी सोच को प्रतिबंधित करता है और समाज में असहमति का कारण बनता है। जब लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो वे दूसरों को वह सम्मान नहीं देते हैं जो सभी मानवों के लिए योग्य हैं और उनके हकदार है। नाउ कम टू पेज नंबर 213. Each of above observation is incorrect and prejudiced. Expectation of diversity and embracing people different from us can reduce prejudice in society. We should understand people before forming an opinion about them in order to overcome prejudice. Similarly, learning about various cultures, regions and languages and developing tolerance can help us overcome prejudice. In a nutshell, we must treat others the way we would like ourselves to be treated. उपरोक्त टिप्पणियों को गलत और गलत होना पूर्वाग्रह से ग्रसित है। विविधता को स्वीकार करना और हमसे अलग लोगों को बैठना है और समाज में पूर्वाग्रहों को कम कर सकता है। पूर्वाग्रह से उबरने के लिए हमें अनेक बारे में एक राय बनाने से पहले लोगों को समझना चाहिए। इस तरह विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के बारे में सीखना और सहिष्णुता विकसित करना और पूर्वाग्रहों को दूर करने में हमारी मदद कर सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हम स्वयं का व्यवहार करें। अब है स्टेरियोटाइप्स, हाउ दे आर क्रिएटेड। ओके, अब इसमें बताया गया है जो
जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वे कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं इसको आपको डिटेल में बता देती हूँ। रीडिंग आप सेल्फ कर लीजिएगा। जब हम एक महिला पर हंसते हैं तो एक कार को ठीक करने की कोशिश करती है, या जब हम हंसते हैं और एक थॉट क्लैड सज्जन में हमें हंसी मजाक करते हैं जो एक डिस्कोथेक में प्रवेश करता है। हम लोगों के लिए पोशाक के बारे में स्टेरियोटाइप बना रहे हैं। एक स्टेरियोटाइप एक निश्चित विचार है जो लोगों किसी के बारे में या कुछ और है, जो अक्सर असत्य और निराधार है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादिता एक पूर्वाग्रह की तरह है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग दूसरे लोगों, समूह, समुदाय आदि के साथ भेदभाव करते हैं। अक्सर रूढ़िवादियों को बिना हमारी पहचान के अनजाने में बनाया जा सकता है। ये तब होता है जब समाज द्वारा बनाई गई मान्यताओं या अवधारणाओं को पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया जाता है। आगे इसमें बताया गया है, मिसाल के तौर पर मशीनों को ठीक करने में किसी महिला की अक्षमता का स्टेरियोटाइप समाज द्वारा महिलाओं के कार्य क्षेत्र में अपनी धारणा के कारण बनाया गया था। हम अक्सर लोगों को समूचे समूह के बारे में धारणा बनाते हुए उनके रूप, रंग, पोशाक, भाषा आदि के आधार पर समूह बनाते हैं और उन्हें लेबल करते हैं। इससे स्टेरियोटाइप का निर्माण होता है। हम तब यह मानना शुरू करते हैं कि उस समूह के सभी लोगों के व्यवहार या समान गुण हैं, ये भूलकर कि लोग अलग अलग क्षमताओं और गुणों वाले व्यक्ति भी हैं। इस अर्थ में हम उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि प्रत्येक समूह के पास अपनी मान्यताओं, प्रथाओं का अपना सेट है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये 2 पेजेस रीड करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।